نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ بالکل پہلی آیت جو ہے چوتھے پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پارے میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، دوسرے پارے میں بھی دی گئی، تیسرے پارے میں بھی دی گئی، اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اور یہ وہ خرچ کرنا نہیں ہے کہ جو فرض ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو الانفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ نعمتیں ہمیں دی ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ پچھلے پاروں میں جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل العفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوں گھر کے اندر، انہیں بچا بچا کے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ کھانا ضرورت سے زائد ہے تو خرچ کر دیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے، استعمال کی کوئی بھی چیز، کوئی فرنیچر ہے جو ابھی آپ استعمال نہیں کر رہے، یا جو آئندہ 10-20 سالوں میں اس کے استعمال کرنے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پیش آنی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس کو بچا بچا کے نہ رکھیں۔ وہ کپڑے جو آپ سالوں سال نہیں پہنتے، ان کو الماری میں لٹکانے کے بجائے، ان کو اپنے بکسوں میں رکھنے کے بجائے، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے شاید آپ کے استعمال میں نہ آ سکتی ہوں، لیکن کسی کا اس سے کام بن جائے۔ لیکن اب چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پہ مزید زور دیا اور یہ کہا کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو ابتدائی لیول ہے، ابتدائی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن اگر تم نیکی کی معراج کو پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم بہت زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، بہت زیادہ متقی بننا چاہتے ہو، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اس سے کچھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ عام لوگ تو ضرورت سے زائد چیزیں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر تم خاص بننا چاہتے ہو تو تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ جب یہ کہہ دیتا تھا نا کہ آپ کی یہ چادر بہت اچھی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی، کوئی بندہ یہ آپ سے کہہ دیتا نا کہ یہ تو بہت اچھی ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اس کو تحفہ دے دیتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی، بہت قیمتی چادر، اور آپ نے وہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاید وہ پسند بھی تھی، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے اس چادر کی تعریف شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کے ان کو دے دی۔ تو صحابہ نے باقی جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ خفگی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ چیز وہ ہدیہ کر دیا کرتے ہیں، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے اسی لیے تو کیا کہ یہ مجھے چادر مل جائے، تو اب وہ چادر مجھے ملی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہوئی ہوئی ہے، اب میں
ज़िंदगी भर इस चादर को अपने से जुदा नहीं करूँगा। तो अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर देना। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो उस वक्त जो सहाबा किराम ने अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च करने की मिसालें पेश की, वो अगर वाक़यात पढ़ें तो इंसान दंग रह जाता है कि कि ये कैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे और कैसे अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले थे। सहाबा कैसे नेकी में कमाल हासिल करने की जिद्दोजहद करते थे। हम तो अगर कोई हमारी क्लास में अगर कोई मर्द हजरात हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो इस बात को समझ लेंगे कि हम तो मस्जिद में जब जाते हैं तो आखिरी सफ में बैठते हैं। कहीं हम ऐसा करते हैं कि कहीं हमें पहली सफ में ना बैठना पड़ जाए, दूसरी तीसरी चौथी सफ में जाके बैठते हैं। लेकिन जब कहा यह गया है कि पहली सफ में बैठने का अजर इतना ज़्यादा है कि अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि पहली सफ में बैठने का अजर क्या है, तो कुरानदाजी करनी पड़े। एक कहे कि मैं बैठूंगा, दूसरा कहे कि मैं बैठूंगा, कुरानदाजी करनी पड़े पहली सफ में बैठने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को कह रहे होते हैं कि आप आगे चले जाएं, आप आगे चले जाएं। यानी हमें नेकी की ज़रूरत ही नहीं है। सहाबा इकराम नेकियों में सबकत किया करते थे और नेकी में आगे बढ़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। ये जब आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा जो फलां खजूरों का बाग है ना, जिसमें मेरा घर भी है, वो मुझे बहुत ही अजीज है, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, मैं वो अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। एक और एक और सहाबी थे, उन्होंने उन्हें जब ये आयत इस आयत का पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा ये जो घोड़ा है, बहुत आला नस्ल का घोड़ा है, ये मुझे बहुत ही अजीज है, ये मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। वो जो बाग अल्लाह की राह में वक्फ करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले सहाबी थे, तो जब उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया कि मैं इस बाग को और इस में बाग में मेरा जो घर है इसको मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, तो वहां से उठे और अपने घर, वो अपने बाग की तरफ गए और उसी बाग में उनका घर था। बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए, बाहर खड़े होके ही आवाज दी अपनी बीवी बच्चों को, कहा कि तुम बाहर आ जाओ। तो जब वो बाहर आए तो कहा कि ये बाग मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, तो अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना सामान उठाने दें। उन्होंने कहा नहीं, सामान भी जब मैंने दे दिया तो सामान भी अल्लाह अल्लाह का है। कहते हैं कि बच्चा खजूर खा रहा था, वो खजूर उसके मुंह से निकाल दी और कहा कि ये बाग अब अल्लाह की राह में खर्च हो चुका है। तो ऐसे वो इन्फाक करने वाले थे और ऐसे वो अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले थे, हालांकि ये फ़र्ज भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पे इस तरह अमल किया और इस तरह वो नेकी पे सबकत करने वाले थे। चौथे पारे में आगे चल के अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, ये इरशाद फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लोगों को, मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो ये उसी तरह की एक ये उसी मानी में से इसी मानी में एक हदीस जो इससे पहले भी गुजरी है, मैंने जिक्र की थी कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें ऐसी छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उनको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी तफरके में नहीं पड़ोगे। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? कुरान और मेरी सुन्नत। तो ये कुरान और सुन्नत दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इंसान अगर मजबूती से पकड़े रखे, जिनको थामे रखे, तो वो कभी भी तफरके में नहीं पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए कि दीन के मामले में कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा बनाएं, कुरान और सुन्नत को अपना मेयार बनाएं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने सारे अपने अकायद को, अपनी इबादत को, अपने मामलात को परखें। जिस चीज़ का हुक्म कुरान और सुन्नत में दिया गया उस पर अमल करें और जिस चीज़ से मना किया गया उससे रुक जाएं। इसके बाद अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया कि तुम
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया है कि इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया, लेकिन बेहतरीन उम्मत क्यों है? ये उम्मत बेहतरीन उम्मत किस वजह से है? इसका जो शर्फ है बेहतरीन उम्मत का, ये इसको क्यों दिया गया? अपने माइक बंद कर दीजिए प्लीज। जी, ये शर्फ उम्मत को इस वजह से दिया गया कि ये कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है, ये इस उम्मत का फर्ज है, जिसकी वजह से इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि कसम है उस हस्ती की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना, वरना अंदेशा है कि अल्लाह तुम पर इसके बदले ऐसा अजाब भेजेगा कि फिर तुम उसे पुकारोगे लेकिन तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया जाएगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आज हमारा यही हाल नहीं है? रमज़ान करीम में हम तहज्जुद में गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, हम नमाज तरावी में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं। अभी 27वीं शब आ रही है, जहाँ पे तकमील कुरान के प्रोग्रामात होंगे, उस मौके पे मजमों के अंदर उम्मत की भलाई के लिए दुआएं की जाएंगी। खाना काबा के अंदर रो रो के लोग खड़े होके रो रो के इमाम काबा दुआएं करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि हमारी दुआओं को नहीं सुना जाता? 3-4 माह हो गए हैं, पूरी उम्मत गजा के मुसलमानों के बारे में दुआ की कर रही है, लेकिन हमारी दुआओं का कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या वजह है? यही वजह है कि हमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वो जो हमारा काम था, वो जो हमारी ड्यूटी थी, हमने उस ड्यूटी को छोड़ दिया। तो अब अल्लाह ताला इसके बदले हमारे ऊपर ये अजाब मुसल्लत किए हुए हैं। एक और जगह पे आता है कि जब जब तुम अमानत अपने अहल लोगों के हवाले करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर अमानत अपने अहल लोगों के हवाले नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला तुम पे बुरे लोगों को मुसल्लत कर देंगे। ये ये एक ये हदीस का मफहूम है। इसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। इस मफहूम में यह हदीस आती है। तो साहबा ने पूछा कि अमानत क्या है, यानी ये अमानत अहल लोगों को के हवाले करने से क्या मुराद है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ओहदा है, जो वो उसके अहल लोगों के हवाले करो। जो ओहदा जिस जो बंदा जिस ओहदे का अहल है, उसी को के हवाले वो ओहदा करो। जब तुम नाअहल लोगों के हवाले ओहदे करने लगोगे तो तुम पे बुरे लोगों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये तो खैर ज़िमनी तौर पे एक बात आ गई। तो बहरल अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस उम्मत का खासा है, और यही इसी वजह से ये उम्मत मुमताज़ है। जब ये उम्मत ये काम छोड़ देगी तो उस पे फिर अल्लाह ताला ने उसके बारे में वईद सुनाई है। अच्छा, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। नेकी का हुक्म देना, अपने माशरे में नेकी का हुक्म देना, व नहीं अनिल मुनकर और बुराई से रोकना, इसके कुछ दर्जे हैं। आप किसी को नेकी का हुक्म कैसे देते हैं? आप उसको अपने बज़ोर ताकत, ठीक है, अपनी जितनी भी आपकी ताकत है या इस्तात है, आप उसके साथ किसी को नेकी का हुक्म देंगे। आप अपना माल खर्च करेंगे, अपनी जान खर्च करेंगे, अपना वक्त लगाएंगे, अपनी जुबान की सलाहियत, बोलने की सलाहियत इस्तेमाल करेंगे, अपने लिखने की सलाहियत इस्तेमाल करेंगे। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी तरह जो जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं, आप उससे नेकी का हुक्म देंगे लोगों को। अब ये नेकी का हुक्म देना है। अब देखें, इस बात पे गौर करें कि ये अमर बिल मारूफ है, नेकी का हुक्म देना, नेकी की दरख्वास्त करना नहीं, रिक्वेस्ट करना नहीं है, ये हुक्म देना है। तो हुक्म कोई आम आदमी किसी दूसरे को हुक्म कैसे दे सकता है?
आप अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को कह के देखें ना कि नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ो, क्यों नहीं नमाज पढ़ते। वो बच्चा तो बच्चे के वालिदैन आ जाएंगे कि तुम कौन होते हो हमारे बच्चों को सिखाने वाले। तो बच्चा खुद बोल पड़ेगा। आजकल बच्चों में भी ऐसी बड़ों की तमीज नहीं है, तो बच्चा खुद बोल पड़ेगा कि आप अपना काम करें, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। ठीक है, तो ऐसे हुक्म कैसे दे सकते हैं? हुक्म देने के लिए तो इस्लामी हुकूमत चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। तो इस्लामी हुकूमत के क़याम की कोशिश हम में से कितने लोग करते हैं? इसी तरह नहीं अनिल मुनकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक हदीस का मफहूम है कि अगर तुम बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोको। अपने हाथ से रोकने से मुराद यह है कि ताकत के साथ उसको रोको। जो तुम्हारे पास वसाइल हों वो सब इस्तेमाल करो और उसको रोको। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो तुम उसको जुबान से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जुबान से रोको। अब जुबान से मुराद ये नहीं कि सिर्फ अपने मुंह में जो जुबान है उससे। जुबान से मुराद ये है कि बयान करने के जितने भी अंदाज हैं उन अंदाज से उसको रोको। अब बयान करने का एक अंदाज है जुबान, कलाम। एक अंदाज है किताबत, लिखना। ठीक है, आजकल पहले कलम से लिखा जाता था, आजकल टाइपिंग है, आजकल कंप्यूटर हैं। तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश करें। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो कुछ आप, जहाँ तक आपकी इस्तात है, तो उसको रोकने की कोशिश करें। ये दूसरे दर्जे की चीज़ है। अगर ताकत नहीं है, अगर किसी चीज़ को ताकत से नहीं रोक सकते, तो उसको इजहार से, नागवारी के इजहार से रोकें। अगर उसकी भी इस्तात नहीं है, अगर ये भी नहीं कर सकते, तो आप उसको दिल में बुरा जाने, कम से कम उसको दिल में बुरा जाने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो अब आप सोचें कि हम बतौर उम्मत किस दर्जे पे खड़े हैं। आप गज़ा के मुसलमानों को ही देख लें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के अहवाल ही देख लें। हम में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते? ताकत से रोकना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो हम इस्तात ही नहीं रखते। हाँ, हम में से जो लोग जितनी इस्तात रखते हैं वो अपने वसाइल भी खर्च कर रहे हैं, हम अपना माल भी खर्च कर रहे हैं। हमें करना चाहिए उनके उनकी मदद के लिए, गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए अपना माल खर्च करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उनको खर्च करें अब गज़ा के मुसलमानों के लिए। और अगर हम नहीं कर रहे तो हम पहले दर्जे से दूसरे दर्जे पे आ जाते हैं। अगर हम अपनी जुबान से, हम अगर मीडिया के जरिए उनके बारे में बात नहीं करते, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में, तो हम दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे पे आ जाते हैं, सबसे कमज़ोर तरीन दर्जे पे। लेकिन अगर हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी भी मौजूद नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमान ही मौजूद नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी चीज़ को, किसी बुराई को दिल से बुरा जानना, ये तो कमज़ोर तरीन दर्जा है। इससे कमज़ोर दर्जा और कुछ नहीं है। इससे कमज़ोर यही हो सकता है कि ईमान हो ही ना सिरे से। इसके बाद चौथे पारे में गज़वात का जिक्र है, गज़वा बदर का और गज़वा उहद का। तो गज़वा बदर और उहद का मैं इजमाली तारुफ आपके सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि आगे भी इसका जिक्र आना है तो बार बार हमें तारीख की तरफ रुजू ना करना पड़े। आप वैसे तो सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको बयान कर देता हूँ। मुसलमान जब हिजरत करके मदीना में आए तो पहले साल छोड़ के दूसरा साल जो था, 2 हिजरी, 2 हिजरी में मुशरिकीन मक्का के साथ सबसे पहला मार्का पेश आया, जिसे गज़वा बदर कहा जाता है। और ये गज़वा जो है, गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शिरकत करते हैं। वो ऐसी जंग को गज़वा कहा जाता है। ये गज़वा बहुत अहम इस लिहाज से था कि ये सबसे पहला गज़वा था, सबसे पहली जंग थी अरब, मुशरिकीन अरब या कुरैश अरब आप कह लें। अब अरब में कुरैश का बहुत ज़्यादा फजीलत वाले, बहुत ज़्यादा शर्फ वाले लोग थे कुरैश। उनका क्योंकि क्योंकि मक्का जो है वो पूरे अरब का मरकज़ था, खाना काबा की वजह से।
बैतुल्लाह की वजह से कुरैश को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, और कुरैश को एक फैसला कुन कबीला होने की हैसियत हासिल थी। और अब मुसलमान जो है वो भी मक्का में, इस्लाम भी मक्का में पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत भी मक्का में हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का का एक गिरोह लेके वहां से निकले, मक्का को छोड़ दिया और मदीना पहुंच गए। और अब कुरैश, सारे अरब की नजरें कुरैश पर थीं कि वो क्या करते हैं। और अब जब कुरैश ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का अलम बुलंद किया, मक्का वालों ने मुसलमानों के खिलाफ जब जंग का इरादा किया, जंग के लिए निकले, तो पूरे अरब की निगाहें इस जंग पर थीं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अगर तो इसमें कुरैश को शिकस्त हो जाती है तो पूरे अरब पे मुसलमानों की धाक बैठ जाएगी। लोगों के को पता चल जाएगा कि कुरैश से टक्कर लेने वाली भी कोई जमात आ गई है, कुरैश से टक्कर लेने वाला भी कोई गिरोह आ गया है। और अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती है तो फिर यही चंद मुसलमान थे, ये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर इस्लाम का किस्सा तमाम हो जाएगा। इसलिए इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है कुरान करीम में। फर्क करने वाला दिन, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन। इस मार्के में, इस गजबे में मुसलमानों की तादाद 313 थी, और कुफार की तादाद 1000 थी। मुसलमानों के पास ना कोई असलहा था, और ना कोई सवारियां थी, घोड़े भी नहीं थे, अक्सर लोग पैदल थे, ज़ीरें भी नहीं थी। बहुत ही कम साजो सामान के साथ मुसलमान इस जंग के लिए निकले। और ये ऐसा मार्का था जिसमें बाप और बेटा आमने सामने थे, मद्दे मुकाबिल थे। बाप अगर मुशरिक है तो बेटा मुसलमान है। सुहैल बिन आम्र, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। मक्का, ये कुरैश के साथ अरब, ये गजवा लड़ने आए थे कुफार की तरफ से। उनका बेटा अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन सुहैल बिन आम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमान थे और मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। अगर बेटा काफिर है तो बाप मुसलमान है, दोनों आमने सामने थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थे, और उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, शायद उनका नाम था, ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और ये कुफार की तरफ से लड़ने आए थे। तो ये ऐसी जंग थी जिसमें रिश्तेदार, खूनी रिश्ते आमने सामने थे। भाई भाई से लड़ रहा था, बाप बेटे से लड़ रहा था, चचा चचा के साथ, मामू के साथ लड़ाई थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, ये जिनका मैंने जिक्र किया, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये मुसलमान हो गए। तो मुसलमान होने के बाद एक दफ़ा अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से तज़किरा करने लगे कि ग़ज़वा बदर के मौके पे एक मौका ऐसा आया था कि आप बिल्कुल मेरी तलवार की जद में थे। अगर मैं चाहता तो आप पे तलवार चला देता, लेकिन मुझे शर्म आ गई। मुझे इस वजह से मैंने अपना हाथ रोक लिया कि आप मेरे वालिद हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि बेटे, अगर यहाँ पे मैं होता, अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तो ये वो गजवा था। और इसी वजह से ये इतना अहम गजवा था। इसी वजह से जिन लोगों ने ये गजवा लड़ा, जिन लोगों ने इस गजवे में शिरकत की, बदरी सहाबा उनको कहा जाता है। और इन इन सहाबा की फजीलत बाकी तमाम सहाबा से ज़्यादा है। बदरी सहाबा के मुकाबले में और कोई सहाबी उनके उनके शर्फ, उनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकता। इस गजवा में मुसलमानों को फतह हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गजवे में एक अलग ऊंची जगह पे, एक अलग जगह पे खेमा लगाए हुए थे, और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि अल्लाह, ये मुट्ठी भर लश्कर है, ये 313 लोग, मैं तेरे हजूर, ये यही जमात थी जो अभी तक तैयार हुई है, और इसको मैं मैदान में निकाल के ले आया हूँ। और अब अगर ये जमात हलाक हो जाए, ए अल्लाह, अगर तू चाहता है कि ये भी हलाक हो तेरा, ए अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।
تو اگر تیری یہی مرضی ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں تو پھر تیری مرضی، تو جو چاہے کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا۔ تو ایک بات، ایک سبق جو اس غزوہ میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، غزوہ بدر میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تیاری تھی نا اس وقت، ٹھیک ہے، یہ 313 لوگ تھے، ان کو میدان میں نکال کے لے آئے، ٹھیک ہے، اور میدان میں لانے کے بعد اب دعا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں کرتے، اب کوشش کچھ نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے، ٹھیک ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ غزہ و کے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم نے کوشش کتنی کی ہے اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی ہے؟ تو ہماری کوشش زیرو ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اسلامی نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو غزوہ بدر اس کے برعکس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو بھی وسائل ہوں ان کو لا کے میدان میں کھڑا کریں، اور اپنی جتنی بھی کوششیں ہوں ان کو بروئے کار لائیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت پیدا فرمائے۔ یہی بات علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تقریباً 14، شاید 13 یا 14 مسلمان شہید ہوئے، اور کفار کے 70 لوگ مارے گئے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار سارے شہید ہو گئے، شہید نہیں، واصل جہنم ہوئے، قتل ہو گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ولید بن شیبہ مارا گیا، ولید بن عتبہ مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ مارا، یہ کیا نام تھا، امیہ بن خلف مارا گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اور کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ اس سے اگلے سال یعنی 3 ہجری کو ایک اور غزوہ پیش آیا، وہ ابو سفیان جو تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اور ابو سفیان صحابی ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اکثر ابو سفیان کا نام لیتے ہیں اور ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور ہمیں شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک لشکر، غزوہ بدر جو تھی نا، بدر کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور جنگ کی گئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور یہ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک مقام پہ کھڑا کیا تھا، جہاں سے یہ خطرہ تھا کہ یہ ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، جبل رومات جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ خطرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں کفار پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے لشکر پہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ تو وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے تم نے پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تم نے پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں حکم نہ دوں۔ اور ان 50 تیر اندازوں کا سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کفار کا جو کی ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی، اور انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو تب ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، جنگ اب ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے انہوں نے اس پہاڑی سے نیچے اترنا چاہا، تو ان کے جو سالار تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک وہ نہ اجازت دیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تب بھی کھڑے رہنا ہے، تو یہ تو اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں،
تو انہوں نے وہ اپنے سالار کی بات کو نہیں مانا اور وہ نیچے اتر گئے۔ تو کفار کا ایک دستہ تھا جس کی کمان کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ وہ وہ پوائنٹ خالی ہو گیا ہے، وہاں سے تیر انداز نیچے اتر آئے، تو وہ خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کے واپس کی طرف ایسے پیچھے پلٹے جیسے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن کافی دور جا کے انہوں نے ایک چکر کاٹا اور اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور اس سے اس جنگ کا جو رزلٹ تھا، جنگ کا جو پانسا تھا، وہ پلٹ گیا، اور مسلمان جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہارنا شروع ہو گئے، وہ شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب آگے بھاگتے ہوئے جو کفار تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی واپس پلٹ آئے اور مسلمان درمیان میں پس کے رہ گئے۔ اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون قتل ہو رہا ہے، کون قتل کر رہا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ مطلب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اپنے آپ اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ اور اتنے میں ایک صحابی شہید ہوئے، وہاں پہ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، وہ شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پہ، اور ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ تو وہ جب شہید ہوئے اور کسی نے ان کو دیکھا گرتے ہوئے، تو اس نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے اور بلکہ جس نے قتل کیا، جس نے ان کو شہید کیا، اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ یہ ایسی بات تھی، یہ نعرہ ایسا تھا جس کو جو سنتا گیا اس کے اوسان خطا ہوتے گئے، جو سنتا گیا اس کے پاؤں سے زمین نکلتی گئی۔ تو کچھ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ہاتھوں سے تلواریں، جن کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے، کچھ ایسے تھے کہ وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے اور زمین پہ گھٹنے ٹیک دیے کہ اب کیا فائدہ، جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں رہا، تو اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ مزید ابتری پھیلی اور مزید جانی نقصان ہوا اس سے، اور قریب تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوتا، جتنا نقصان ہوا اس سے بھی کئی گنا بڑا نقصان ہوتا، کہ ایک صحابی کسی نے آواز دی، کوئی صحابی تھے، انہوں نے ایک اور نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقصد جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیوں نہ ہم بھی اسی کے لیے جان دے دیں، کیوں نہ ہم بھی اسی کے لیے لڑیں اور کٹ کے مر جائیں۔ اور یہ وہ بات تھی جس سے دوبارہ مسلمانوں کے اندر جان آئی، تو انہوں نے دوبارہ بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اپنے ہتھیار اٹھائے اور لڑنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کسی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ غزوہ یہ جو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ رسول اللہ تو اس طرف ہیں۔ تو خوشی کے مارے لوگوں کی لوگوں کا خون کھولنا شروع ہوا، لوگوں کے جان میں جان آئی صحابہ کے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، اور اسی سے پھر کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، تو وہ بھی اس طرف بڑھے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ جو صحابہ بچے کچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے اور آپ کا دفاع کر رہے تھے، اور کفار بھی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹے ہوئے تھے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزے پھینک رہا تھا۔ اور صحابہ کرام نے اس موقع پہ جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانی کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی کہ تاریخ میں کسی بھی اپنے لیڈر کے لیے اپنی جانیں اس طرح گنوانا، اپنے جسم اس طرح پیش کرنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آ، تیروں کی بارش کے آگے کھڑے ہو جانا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پہ تیروں کو روکنا کہ ان کے محبوب کو تیر نہ لگ جائے، تلواروں کے وار اپنے جسموں پہ روکنا۔ صحابہ کے جسموں پہ کئی کئی تیروں کے تیر لگے، لیکن انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی وار کو نہیں پہنچنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران پہاڑ پہ چڑھتے رہے اور صحابہ ان کا دفاع کرتے رہے۔ اس دوران ایک موقع ایسا آیا کہ ایک کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور اس نے وار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا ہوا تھا
लोहे का हेलमेट जो होता है, जो जंग के मौके पे पहना जाता है, उस होद की कुछ कड़ियां थी जो ऐसे जो नीचे लटक रही होती हैं चेहरे पे। तो वो कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में घुस गईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान एक उसमें एक गड्ढे में भी गिरे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट आई। और लेकिन इसके बाद वो दोबारा एक महफूज मकाम पे जबल ओहद पे पहुंच गए, जिससे जहां से कुफार नहीं पहुंच सकते थे, और वो वापस वो नीचे रुके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो कड़ियां निकाली गई। एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाली, शायद, बल्कि दोनों ही उन्होंने निकाली, और उससे उनके दांत भी शहीद हुए। तो ये मुख्तसर ये कि मुसलमान ये जंग नहीं जीत सके। और जो जिस वजह से नहीं जीत सके वो वजह ये थी कि उन तीरंदाजों ने वो अपनी जगह छोड़ दी थी। और मुसलमानों के 70 लोग इस जंग में शहीद हुए, बिल्कुल वही उतने ही लोग जितने गज़वा बदर में कुफार के कत्ल हुए थे। गज़वा बदर में कुफार के 70 लोग मारे गए थे, और गज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए। और इसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, आपके रज़ाई भाई भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बहुत ज़्यादा सहारा था। तो अब देखते हैं कि चौथे पारे में ग़ज़वा ओहद के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, कुरान करीम ने क्या क्या बातें की हैं। अगर एक बात यह है, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा है तो तुमसे पहले उन्हें भी ऐसा ही नुकसान पहुंचा था। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि अब अगर तुम्हारे इस जंग में 70 लोग शहीद हुए हैं, तो इससे पहले गजवा बदर में उनके भी तो 70 लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कौन सा हिम्मत हारी थी? वो तो एक साल तैयारी के बाद फिर तुमसे मुकाबले के लिए पहुंच गए थे, तो तुम हिम्मत क्यों हारते हो? ठीक है। इसके बाद एक बात ये की गई है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो बस, अब ये उस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है कि जिस जब ना ये सुन के कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं, तो लोगों ने हिम्मत हार दी थी, लोगों ने मैदान छोड़ दिया था। तो ये उस बारे में बात हो रही है कि मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद से पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर मोहम्मद अल्लाह की राह में मारे जाएं या कत्ल हो जाएं, तो क्या तुम वापस उल्टे पांव जाहिलियत की तरफ फिर जाओगे? ठीक है, ये इस आयत का मफहूम है कि तुम्हारा जो तुम अगर मोहम्मद की पैरवी करने वाले हो, अगर मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हो, तो मोहम्मद, इसका मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेके आए, जिन्होंने तुम्हें अल्लाह का तारुफ कराया, जिन्होंने तुम्हें तुम्हें अल्लाह की तरफ पहुंचने का रास्ता दिखाया, तो क्या तुम उस दावत को ही छोड़ दोगे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाएं? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो क्या तुम उस बात को छोड़ दोगे? तो ये इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेके आए थे, उस दावत को मानने वाले लोग जो हैं, वो उस दावत के साथ जुड़े रहेंगे, नबी रहें या ना रहें। इससे पहले भी बहुत से अम्बिया आए हैं और चले गए हैं, लेकिन उनकी दावत जो है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। तो अब एक और, अब उस गलती की तरफ इशारा है अगली आयत में, कि जो उन तीरंदाजों से हुई थी, तो अल्लाह ताला ने इनसे ये कहा कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुमसे ये गलती गलती सरजद हुई थी तो तुम्हें माफ़ कर दिया गया। अच्छा, इस गजबे में मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ? वो इस आयत में बताया जा रहा है कि ताकि अल्लाह ताला ये जान ले कि कि कौन तुम में से ईमान वाला है और कौन तुम में से मुनाफिक है। ये मुनाफिक मैं अपने पास से लगा रहा हूँ। आयत में यह है कि तुम में से ईमान वाला कौन है, अल्लाह ताला ये जान ले। तो इस गजवा में हुआ क्या था कि शुरू में मुसलमानों की तादाद 1,000 थी। जब ये मदीना से निकले तो तादाद 1,000 थी। लेकिन दरमियान में जाके, रास्ते में जाके, जो अब्दुल्ला बिन उबई था, मुनाफिकों का सरदार, उसने वो 300 लोगों को, अपने 300 साथियों को लेके मुसलमानों से अलग हो गया। उसने कहा कि हमारा मशवरा नहीं माना गया। उसका मशवरा ये था कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए, बाहर निकल के जंग ना की जाए खुले मैदान में।
तो उसने कहा कि मेरा मशवरा नहीं माना गया, लिहाजा मैं इस जंग में शरीक नहीं हो सकता। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन इससे कम से कम ये तो पता चल गया ना कि मुनाफिक कौन है। ठीक है। जब अमली मैदान में कोई दगा दे जाए, अमली मैदान में कोई धोखा दे जाए, साथ छोड़ जाए, तो पता चल जाता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ठीक है। तो इससे मुसलमानों को ये फायदा हुआ कम से कम कि ये पता चल गया कि मुनाफिक कौन है। दूसरा, इस जंग के हारने से ये भी फायदा था कि अगर मुसलमान हर जंग जीतते, फरिश्तों की मदद से, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से सारी जंगें ही जीतने लग जाते और माले गनीमत पे माले गनीमत ही इकट्ठा करने लग जाते, तो फिर तो मुनाफिकीन वो बड़ी खुशी से मुसलमानों के साथ चलते और जंगें लड़ते। उन्हें तो पता चल जाता कि ये मुसलमानों ने तो जंग जीतनी जीतनी है, मुसलमानों के साथ तो फरिश्तों की मदद है, लिहाजा हम भी साथ हो जाते हैं, तो माले गनीमत भी मिलेगा और मुफ्त की जो है वो हमारी शोहरत भी होगी। तो जंग हारने से, मुसलमानों की शहादत होने से, अब कुफार जो मुनाफिकीन थे, जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके साथ जुड़े हुए थे, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर मुसलमानों के साथ जंग लड़ें या ना लड़ें, हमें तो अपनी जानें भी गंवानी पड़ेंगी। तो ये भी फायदा हुआ इस जंग के हारने से। फिर मुसलमानों की हिम्मत बंधाई गई है। मुसलमानों को ये कहा गया है कि तुम पहले रसूलों के साथ भी लोगों ने मिलकर जिहाद किया था, उन्हें उन्होंने तो कभी हिम्मत नहीं हारी थी, तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो। ठीक है। ये मुसलमानों की हिम्मत भी बनाई गई। और फिर ये मुसलमानों को ये भी तसल्ली दी गई कि तुम्हारी शिकस्त का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला तो उनको ढील दिए जा रहे हैं ताकि वो गुनाह में मजीद बढ़ते जाएं और फिर एक ही दफ़ा उनको पकड़ा जाए। और फिर इसमें मुसलमानों के लिए एक ये भी सबक था कि दुनियावी कामयाबी को मकसद बना लेने से खता हो सकती है। अगर मुसलमानों के दिल में ये बात पैदा हो गई कि हमारे साथ तो फरिश्तों की मदद मौजूद है, हम जो चाहें करें, हमने तो जंग जीतनी ही जीतनी है, तो इससे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये सोच रखने से रोका कि खुद भी मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, नबी की इताअत करनी है। सबसे बड़ा सबक जो इस जंग से हमें मिलता है वो ये कि हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। जो उन्होंने हुक्म दे दिया बस दे दिया, उसमें अपनी अकल, अपना अपना फहम, अपना शऊर उसको पीछे छोड़ दें और रसूल की इताअत करें, मुतलक इताअत करें। तो ये इस गज़वाए ओहद का तबसरा था जो चौथे पारे में किया गया। हम लोग मुसलमान हैं और ये गुमान करते हैं कि हम सब, और ये बहुत अच्छा गुमान है, हम सबको ये करना भी चाहिए कि हम जन्नत में जाएंगे। हम सब लोग इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में लेकर जाएं। लेकिन ये जो जन्नत है ना, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ठीक है। इस जन्नत को मेहनत से कमाना पड़ता है। ये जन्नत कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। इसके बारे में ये सूरह आले इमरान हम पढ़ रहे हैं, इसकी आयत नंबर 142 और 143 में ये इरशाद फरमाया गया है कि हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पे ऐसी मुसीबतें तो अभी आई ही नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पे आई थी। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, उन्हें मुसीबतों ने, उन्हें तकलीफ़ों ने ऐसा घेरा था और उनको ऐसा हिला डाला था कि हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, कि उनके जो रसूल थे, बाकी ईमान वाले तो ईमान वाले, जो रसूल थे वो भी पुकार उठे थे कि अल्लाह की मदद कहाँ है, जिस मदद का हमसे वादा किया गया था वो मदद कहाँ है। उनको इतनी तकलीफें दी गई थी। तो क्या ख्याल है, हमें हमें अपने मुसलमान होने पे कितनी तकलीफें दी गई हैं। क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम घरों में बैठ के सुकून के साथ, घरों में बैठ के तुम ये गुमान करते हो कि तुम आसानी से जन्नत में चले जाओगे। तो आपका क्या ख्याल है, हमें क्यों तकलीफ आएगी, किसी भी चीज़ की तकलीफ हमें क्यों आएगी। तकलीफ तो तब आएगी जब हम अल्लाह के दीन के नफाज के लिए खड़े होंगे। तो तब आप वैसे तो बैठे, बेशक आप 5 वक्त की नमाजें, क्या आप नमाज तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक भी पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें, आप ने सदका व खैरात करना है तो आप
2.5% के बजाय 10% दें। आपने जिक्र व अज़कार करना है तो आप सारा दिन मस्जिद के स्पीकर पे जिक्र व अज़कार करते रहें, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह के दीन के निफाज की बात करेंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, आप पर तरह तरह के हमले किए जाएंगे। वो हमले ज़ुबान से होंगे, वो हमले सोशल मीडिया से होंगे, वो हमले मीडिया के ज़रिए होंगे, वो हमले अदालतों के ज़रिए होंगे। आप पर हर तरह के हमले किए जाएंगे। तो याद रखिए कि दीन का काम करने से, दीन के रास्ते में जब आप निकलेंगे तब आपको तकलीफें आएंगी। आप सिर्फ घर में बैठ के इबादत करते रहेंगे तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में चले जाओगे हालांकि तुम पे कोई तकलीफ भी नहीं आई। अच्छा, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए बहुत ही नरम दिल थे। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए नबी, ये अल्लाह की रहमत ही थी कि आप लोगों के लिए नरम दिल बन गए। अगर आप सख्त दिल वाले होते, सख्त तबीयत वाले होते, तो ये सहाबा इतने परवाना वार, इतने दीवाना वार आपके सामने आपके गिर्द इकट्ठे नहीं होने थे। तो ये एक लीडर के लिए, ये हम सब के लिए ये सबक है कि हम अगर ये चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हम अगर ये चाहते हैं कि हम लोगों के पसंदीदा पर्सनैलिटी बने, तो हमें नरम दिल होना पड़ेगा। हमें अपने फॉलोअर्स चाहे वो जितने भी हैं, हमें उन फॉलोअर्स के साथ नरमी वाला मामला करना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये अल्लाह की रहमत थी कि आप नरम दिल हुए। अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा आपके गिर्द इस तरह इकट्ठे नहीं होने थे। तो और फिर इसी पारे में अल्लाह ताला ने इंसानियत पे ये बड़ा एहसान जिताया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मोमिनों पे ये बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने अल्लाह का रसूल उनमें भेजा, अपना महबूब तुम में भेजा। ये बड़ा एहसान है। अब देखें, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत सी नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने किसी नेमत का एहसान नहीं जिताया। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, किसी भी नेमत का एहसान नहीं जिताया। लेकिन लेकिन अल्लाह ताला ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाने की जो नेमत थी, इसका एहसान जिताया। इससे हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ पे आले इमरान, सूरह आले इमरान ख़त्म होती है और सूरह निसा शुरू होती है। सूरह निसा क्योंकि ये बिल्कुल इसके अलग टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये कल हम इसको शुरू करें, और ताकि फिर अगर आज हमने शुरू की तो आधी रह जाएगी। कल हम इसको शुरू करेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे।